Yash, please start. The session started recording. Yes. Hello everyone, I'm Yash Saraf. Wish you all a very good evening. Hope you all are having a good market session and you all are enjoying the markets. So, in the today's session, we'll be learning about how to use the stock edge scans, my combination scans, and trending stocks, and we'll understand how we can enhance our analysis and enhance our research and filtration of stocks with the help of these three features. So, in the today's session, we'll be dividing this session into three parts. The first part will be the scans, and then we'll have a short Q&A session. And in the second part, we'll be going with the my combination scans. Then again, we'll have a Q&A session, and in the end, we'll be starting with the trending stocks. And then I will tell you all कि हम लोग कैसे इन तीनों चीजों को साथ में यूज करके how we can get benefit by using all these three features in sync. That is scans, my combination scans, and trending stocks. Right. So before wasting any time, so let's proceed further with the scans. I hope everyone can see my screen. So let's move inside scan. So as I can say, Stockade is an EOD platform, as you all must be knowing. And Stockade was the first one. Stockade is the first platform to launch scans, the concept of screeners and the concept of scans into the Indian equity markets. And obviously, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि देयर आर 5,000 प्लस स्टॉक्स, तो किसी भी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है कि 5,000 स्टॉक्स को एक साथ में फॉर ऑल डेटा पॉइंट स्कैन किया जाए, बिकॉज एज यू ऑल नो देयर आर एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो ऑब्वियसली अगर हम लोग को अपना एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हम लोग को फिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग करना है, देन वी नीड टू बी एफिशिएंट, वी नीड टू मेक अ प्रोसेसेस एफिशिएंट, एंड देयर वेयर स्टॉकेज कम्स इन प्लेस. सो दैट इज व्हाट we'll be learning. So as you all must know that there are n number of data points available in the market, and for that Stockage has tried to cover all of them, and Stockage is providing 450 plus advanced scans. Yes, right. Stockage के अंदर हम लोग यहाँ पे scans के हम लोग का जो मॉडल है उसके अंदर there are more than 450 plus advanced scans, जिसके अंदर more than 70% of the scans are paid. So what are those 450 plus scans? So we have categorized those 450 plus scans into seven broad categories. Price scans, which involves filtration of stocks on the basis of price action. Volume and delivery scans, which involves filtration on the basis of volume and delivery trends. Then we have technical scans, fundamental scans, futures option scans, strike price option scans, and candlestick scans. So let's start with the price scans. As you all know, there are you all can see multiple types of price category scans. So what are these? So basically under the price scan हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्राइस एक्शन को कैप्चर करते हैं. वी ट्राई टू कैप्चर द प्राइस एक्शन ट्रेंड्स, बिकॉज प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है मार्केट्स में. मतलब देयर आर सेइंग that if investors and traders are well capable enough to track the prices, interpret the prices of the stocks, so they can very well know कि what the stock is demanding, right? So हम लोग इसलिए प्राइस एक्शन को कैप्चर करना कोशिश करेंगे. एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कई सारे पीरियोडिक स्कैन्स है. व्हाट आर दोस पीरियोडिक स्कैन्स? वीकली स्कैन्स, मंथली स्कैन्स, 52 वीक ब्रेकआउट, 52 वीक रेंज, 2 ईयर, 5 ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स. So let's start with weekly breakout scans. So this is the weekly breakout scans. सो सबसे पहला स्कैन है क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई. मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इन स्टॉकेज वी ट्राई टू मेक आर स्कैन्स और मेक आर फीचर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आप जब भी किसी भी स्कैन को पढ़ो या किसी भी स्कैन का नाम पढ़ो या कोई भी फीचर पढ़ो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाए कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. जैसे इट इज वेरी क्लियर इन दिस क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, दैट मीन्स कि ये वो सारे स्टॉक्स को फिल्टर करेगा जो अपने लास्ट वीक के हाई को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दे रहे हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा समझेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द स्कैन
सो दैट कि हम लोग को हर एक चीज का फंक्शनैलिटी पता चल जाए, एंड ये हम लोग को कैसे मदद करेगा आगे और स्टॉक्स फिल्टर करने में, अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला स्कैन, जैसे अगर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, दैट इज क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई। सो इसके अंदर सबसे पहले, इफ you go into any scan, right? If you go into any scan and if you don't understand what that scan is all about, then what you all can do is you all can click on the I section. In the I section, you will get the meaning of the scan, you will get the significance of the scan, and you will get to know ki why this scan is built, what is the importance of this scan, how this scan will help you. Also, in almost all of the scans, there is a short visual graphic video, and wherein you can actually see the video and you can understand ki how to use and how to get benefit from these price scans, right? And this is available across all scan categories. So this was all about the scan info section. Now, before proceeding further to the actual output, कि scan का output क्या है, अब मैं आप लोग को बाकी सारा चीज बता दूं। जैसे सबसे पहले मेजर स्टॉक्स, यहाँ पे जो मेजर स्टॉक्स दिख रहा है आपको, ये इट इज एन इन हाउस स्टॉकेज filter. I can say it is an in-house stock and advanced filter, wherein major stocks is a combined filter of top NSE and BSE 500 stocks. Let me again say, major stocks, top NSE 500 stocks and top BSE 500 stocks का कंबाइंड लिस्ट है। बिकॉज वी फील कि अगर मार्केट का मूड समझना है, अगर मार्केट का मोमेंटम को समझना है, तो जो टॉप 500 स्टॉक्स है मार्केट कैप वाइज एनएससी बीएससी के, अगर हम लोग उनका मूड एंड उनका मोमेंटम को समझ जाए, उनके ट्रेंड्स को समझ जाए, तो मार्केट का मूड को समझने में एक ओवरऑल आसानी मिलती है। तो दैट इज वाई वी हैव मेड दिस कंबाइंड फिल्टर मेजर स्टॉक्स। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्कैन के आउटपुट में, कि व्हाट इज स्कैन आउटपुट ऑल अबाउट। सो एज वी कैन सी, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इज द फर्स्ट आउटपुट, विच इज क्लियरली शोइंग कि उसका लास्ट वीक का जो हाई था, बाय वीक आई मीन कैलेंडर वीक, दैट इज उसका जो लास्ट वीक का हाई था, दैट वाज 84.15। एंड देन yesterday, let me all tell you कि सॉकेट इज एन यूडी प्लेटफॉर्म एंड आज मार्केट्स बंद थे, तो ऑब्वियसली ये जो डेटा, ये आपको कल तक का डेटा दिख रहा है, दैट इज 30 अप्रैल 2024। सो कल जेएम फाइनेंशियल ने 84.15 को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में 88.90 पे जाके इसने कल क्लोजिंग दिया है, विथ अ 9.1% इंक्रीज। तो इससे क्लियर कट क्या समझ में आता है कि ये जो स्टॉक है, ये अपने लास्ट वीक के जो हाई लेवल्स थे, उस हाई लेवल्स को क्रॉस करके कल ऊपर में बंद हुआ है, विच मीन्स क्लियरली इट इंडिकेट्स दैट दिस स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अ वीकली लेवल। वीकली बेसिस पे ऑन द करेंट वीक लेवल ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सबसे टॉप पे है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाई मोमेंटम आया था, विच इज 9.1%। अगर आप इसके स्टॉक के चार्ट में जाके देखोगे, राइट, तो हम लोग यहाँ पे थे। तो एज वी कैन सी कि इस स्टॉक ने कल अपना जो लास्ट वीक का हाई था, दैट वाज ओवर हियर 84.15, इस स्टॉक ने कल इस ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो अगर मैं इसका और थोड़ा सा और प्रीवियस पीरियड का चार्ट देखूं, अगर 6 मंथ का चार्ट देखूं, तो आई कैन क्लियरली सी कि इस स्टॉक के अंदर, दिस स्टॉक इज ऑन अ, इस स्टॉक का जो लास्ट वीक का जो जो प्रीवियस हाई था, दैट वाज 88.80। तो इस स्टॉक ने एक छोटा सा लेवल पे, एक ऑन अ 1 मंथ लेवल, इस ये स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल पे है, राइट। सो इसे एक समझ में आता है कि हाँ, ये जो स्टॉक है ये अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग है ऑन वीकली लेवल,
सो ऑब्वियसली दिस स्टॉक इज अ वॉच आउट फॉर टुमारो। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई स्टॉक का पिक्स नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को खाली ये बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे स्कैन्स के थ्रू, अलग अलग टाइप के स्कैन्स के थ्रू हम लोग स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक है में थे। तो अभी हम लोग ने जीएम फाइनेंशियल का देखा, वैसे ही करके हम लोग को काफी सारे और स्टॉक्स हम लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर और इसका बेस्ट एडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी स्कैन के अंदर कोई भी स्कैन का आउटपुट जो आ रहा है मेरा यहाँ पे, वो सारा स्कैन का आउटपुट हम लोग का एक्चुअल डेटा के ऊपर है। लेट मी ऑल टेल यू कि जितने भी स्कैन्स के अंदर डेटा आउटपुट आ रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि हम लोग ने कोई मैनुअल डेटा डाला है। इट इज हम लोग का सिर्फ लॉजिक है, राइट। ये जितना भी सारा डेटा आ रहा है, जितने भी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्चुअल जो स्टॉक्स रिपोर्ट करे वो डेटा उसके बेसिस पे आ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि अब इसके अंदर तो यहाँ पे एज वी कैन सी देयर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स इन मेजर स्टॉक्स यहाँ पे। सो अगर हम लोग को अपना एनालिसिस को और बेटर इंप्रूव करना है, अगर हम लोग को जो हम लोग का स्टॉक का लिस्ट है उसको और बेटर इंप्रूव करना और फिल्टर करना है, तो वी हैव दिस एडवांस फिल्टर्स ऑप्शन। दैट इज कि आप बाई इंपॉर्टेंस में जाके मेजर स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, सिर्फ एनएससी स्टॉक्स, बीएससी स्टॉक्स और ओनली एनएससी एनएससी एफओ स्टॉक्स, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। या जो लोग मार्केट में नए आए हैं, फॉर ऑल दोज न्यू ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव कम इनटू द मार्केट एंड दे ओनली वांट टू ट्रैक निफ्टी 50 स्टॉक्स, जो सबसे सेफ स्टॉक्स माना जाता है, तो आप खाली निफ्टी 50 स्टॉक्स से भी फिल्टर लगा सकते हो। एंड देन इवेंचुअली यू कैन चेक आउट कि हाँ निफ्टी 50 के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना लास्ट वीक के हाई के ऊपर का क्लोजिंग दिया है। सो इफ यू सी, वी कैन सी कि ओनली फोर, देयर आर ओनली फोर स्टॉक्स जो अपने लास्ट वीक के हाई को क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, डिस्पाइट कि येस्टरडे मार्केट्स काफी अच्छे थे एंड फिर भी एंड मार्केट में सेलिंग आया था। सो इवन आफ्टर दैट सेलिंग, these stocks managed to close above their last week high, that is which is a clear indication। ये जो चारों स्टॉक है, पावर ग्रिड, महिंद्रा महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, शीरो मोटोकॉर्प, ये चारों कल के क्लोजिंग के टाइम पे व्हेन द मार्केट्स वर नेगेटिव, दे these four stocks were still standing strong। as you all can see कि पावर ग्रिड 2.8% अप था, महिंद्रा महिंद्रा 4.6% अप था, श्रीराम फाइनेंस 2.4% एंड हीरो मोटोकॉर्प 1.9% इवन आफ्टर मार्केट्स फॉल। तो विच मीन्स कि ये चारों स्टॉक भी अभी इस करंट वीक में काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है ऑन अ बुलिश लेवल, राइट। सो ये मैं आपको फिल्टर बता रहा था। अब फिल्टर के अंदर व्हाट अदर फिल्टर्स वी हैव प्राइस फिल्टर्स की, अगर आपको प्राइस के बेसिस में फिल्टर करना है। वी हैव बाई कैटेगरी फिल्टर, आपको अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फिल्टर यूज करना है। और वी हैव बाई मार्केट कैप फिल्टर्स कि आपको किसी एक स्पेसिफिक रेंज के मार्केट कैप के स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। जैसे कि आपको अगर पेनी स्टॉक्स ढूंढना है, आपको सिर्फ 100 करोड़ के नीचे के स्टॉक्स को ढूंढना है, तो उससे आप चेक कर सकते हो। और या आप किसी सेक्टर के अंदर अगर आप फिल्टर करना चाहते हो कि इफ यू फील कि आज का जो मार्केट था वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर था, या कोई बहुत सेक्टर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया है, तो आप उस सेक्टर के बेसिस पे भी आप फिल्टर कर सकते हो। देन इफ यू ऑल वांट टू नो कि नहीं, अगर आपको और आगे जाके फर्दर अपना एनालिसिस करना है, देन व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू कैन डाउनलोड दिस डेटा बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यू कैन डाउनलोड दिस एंटायर डेटा और एनी डेटा ऑफ दिस स्कैन बाय क्लिकिंग ओवर हियर, एंड द एंटायर आउटपुट ऑफ दिस स्कैन विल गेट डाउनलोडेड इन एन सीएसवी फॉर्मेट। फिर आप एक्सेल में जाके आप अपना जो आगे का एनालिसिस है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे बेस्ट पार्ट है एंड जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस स्कैन के अंदर, है किसी भी स्कैन के अंदर, वो ये है कि आप किसी भी स्कैन को जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियसली नए आए हो, या 450 प्लस स्कैन्स है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कि वो लोग ऑन अ डेली बेसिस 450 प्लस स्कैन्स का ट्रैक रखे, हर डेली बेसिस पे 450 प्लस स्कैन्स को जाके चेक करे। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग ऑब्वियसली आप लोग जैसे जैसे स्कैन्स में जाओगे, आप व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस स्कैन, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज आप लोग प्रीवियस डेज का स्कैन्स का आउटपुट जाके चेक कर सकते हो। एंड उसमें फिर ये कर सकते हो कि जो उसमें जो स्टॉक्स फिल्टर हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 22 अप्रैल को जा रहा हूँ एंड 22 अप्रैल को तेजस नेटवर्क्स 16.9% का एक अच्छा खासा अप्रूव दिया था, राइट, एंड इट वाज ऑन टॉप। सो अगर मैं स्टेटस नेटवर्क में अंदर जाके क्लिक करूं एंड मैं चेक करूं कि 23 अप्रैल को क्या था, 22 अप्रैल को ये स्कैंडल बनाया, 23 अप्रैल को भी इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया था विच वॉज ड्यूरिंग दैट वीक ओनली। एंड आप देखोगे कि उस वीक के बाद में भी इस वीक के अंदर क्लोजिंग ऊपर की ही आई है। सो व्हाट यू कैन सी इज कि दैट ये जो स्टॉक है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लास्ट वीक में, जिसकी वजह से जिस दिन ये स्टॉक फिल्टर में आया उसी दिन
उसके नेक्स्ट डे स्टॉक ने वापस एक अच्छा खासा ग्रीन मूवमेंट दिया। अब अगर आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग चेक करोगे, तो अगेन दिस वाज ऑन 22nd, देन 23rd की छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट इफ यू चेक ओवरऑल इन दैट पर्टिकुलर वीक, देन वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही था, एंड यू कैन सी मोर नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स इन दैट स्टॉक। तो आप ऐसे ऐसे करके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, यू कैन बैक टेस्ट फॉर अ 7 डे पीरियड, कि आप 7 डे के बैक में जाके भी आप चेक कर सकते हो कि जो भी सारे आउटपुट आ रहे हैं किसी भी स्कैन के अंदर वो कैसा आ रहे हैं, एंड इवेंचुअली यू कैन फिल्टर आउट योर फेवरेट स्कैन, एंड आपको जो स्कैन्स को यूज करना होना डेली बेसिस, यू कैन फिल्टर आउट दो स्कैन, एंड फिर आप उसी स्कैन को यूज कर सकते हो। वैसे ही क्लोज क्रॉसिंग, यहाँ पे और भी काफी स्कैन्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाकी स्कैन्स की तरफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स, 2 ईयर ब्रेकआउट, 5 ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये जो स्टॉक है ये 52 वीक ब्रेकआउट दे रहा है, अपना 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये विद इन क्लिक्स पता कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स है जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो आप यहाँ के आगे स्कैन में चेक कर सकते हो, और आपको ये दिख जाएगा कि ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना कल ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज इंडस्ट्रीज, उसका जो ऑल टाइम हाई था दैट वाज 918, एंड देन इस स्टॉक ने कल 918 को क्रॉस करके 960 का क्लोजिंग दिया, एंड एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, राइट। तो इससे आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी, जो अपने नए हाई लेवल्स पे, हाईएस्ट लेवल्स पे खड़े हैं। तो इवेंचुअली आप उसके अंदर आप मूव देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली देयर आर टू सिनारियोज, या तो कोई स्टॉक अपने एक नया ऑल टाइम हाई बना के नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, या कोई स्टॉक उस नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वो और ऊपर बढ़ता जाता है। तो इवेंचुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक है, क्या वो एक काफी दिनों बाद, जितने दिन बाद, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि जो कोई भी स्टॉक जितने स्पैन ऑफ टाइम के बाद अगर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक 1 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, एंड कोई स्टॉक 1 महीना बाद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, तो उस केस में 1 साल बाद जो स्टॉक है जो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट टुक मोर टाइम टू क्रॉस दैट हाई लेवल, विच मीन्स कि नीचे से जो सपोर्ट आ रहा है उसको, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सेम वे में कोई स्टॉक अगर 5 साल बाद जाके अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, एंड कोई स्टॉक है जो 5 महीने में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, सो इवेंचुअली जो जो स्टॉक 5 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, दैट इज वे मोर स्ट्रॉन्गर। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दी फैक्ट्स, नॉट दी नंबर्स। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि जो 5 महीने में जो, इफ एनी स्टॉक इज ब्रेकिंग इट्स ऑल टाइम हाई इन 5 मंथ, can be more stronger than a stock which is breaking its all time high in 5 years। मे बी कुछ स्टॉक के अंदर कुछ बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आया है, या कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया है, इट कैन बी एनीथिंग। बट नॉर्मली फैक्ट्स के बेसिस पे अगर वी गो, देन दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड। अब नॉर्मली क्या होता है कि मेनी पीपल एंटर इन दोस इन दिस ब्रेकआउट स्टॉक्स, कोई स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है, एंड देन पीपल एंटर एट हाई लेवल्स, एंड देन दे गेट स्टक, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो उससे बेटर रहता है कि हम लोग इन स्टॉक्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि विच आर दो स्टॉक्स दैट प्रोबेबल, दैट आर परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर गिविंग अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो उसके लिए भी हम लोग के पास कई सारे स्कैन्स है, जैसे क्लोज विद इन ऑल टाइम हाई जोन, या क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन। सो व्हाट इज दिस ऑल टाइम हाई जोन? सो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो जोन है ना, यस, ये जो जोन है, दिस जोन इज द 15% रेंज। दैट इज, ये भी हम लोग ने analogy दिया हुआ है कि अगर किसी भी स्टॉक का, फॉर एग्जाम्पल उसका ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज, सो उसका 15% नीचे, दैट इज 85 से 100 तक उसका हाई जोन है। अकॉर्डिंगली उसका जो लो जोन होगा वो उसके लो से 15% ऊपर रेंज में होगा। सो व्हाट वी से कि अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन में एंटर कर रहा है, दैट इज कोई स्टॉक 85 के नीचे था एंड वो अब 85 के ऊपर आ गया है, इट एंटर कर रहा है, सो विच मीन्स कि दैट स्टॉक इज गेटिंग इनसाइड द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, दैट स्टॉक इज गेटिंग इनसाइड द ऑल टाइम हाई जोन। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी, अगर उस स्टॉक को अपना ऑल टाइम हाई तोड़ना है, देन दैट स्टॉक विल हैव टू क्रॉस द जर्नी फ्रॉम 85 टू 100। उस स्टॉक को 85 से 100 तक जाना पड़ेगा, राइट। तभी वो स्टॉक 100 को लेवल्स को क्रॉस कर पाएगा। तो ये जो सारे स्टॉक्स आते हैं जो क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन में, इट मींस कि ये सारे स्टॉक्स
मीडियम टर्म स्ट्रॉन्ग से अभी करेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दीज स्टॉक्स आर परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर ब्रेकिंग देयर ऑल टाइम हाई। फॉर एग्जाम्पल फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस, फिनोलेक्स केबल्स, पीवी फिनटेक, ये जितने भी सारे स्टॉक्स हैं इन सबका आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है, एंड ऑल टाइम हाई से कितने नीचे ये सारे स्टॉक्स हैं अभी भी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इसके बीच का जो इतना का जो डिफरेंस है 13.5%, 13.14%, इतना का रेंज अगर ये स्टॉक एक्चुअली ब्रेकआउट देते हैं, देन आप लोग इस रेंज के अंदर इस रिटर्न को आप लोग ऑब्वियसली पहले से आइडेंटिफाई करके आप लोग गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीएससी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई से 14.5% ऊपर है, and अगर आप लोग को लगता है कि नहीं ये स्टॉक अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो आप लोग ऑब्वियसली बीएससी स्टॉक में अभी एंटर करोगे ना, ताकि ये जो 14.5% है आप लोग इस 14.5% का रिटर्न को भी आप लोग गेन कर पाओ, आप लोग बुक कर पाओ। तो इवेंचुअली इस तरीके से आप लोग ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। ऐसे ही करके और काफी सारे स्कैन्स है। अब हम लोग का एक और स्कैन आता है RS 55 स्कैन, रेटिव स्ट्रेंथ 55 डे स्कैन। सो इसके अंदर क्या है ना कि RS 55 डे स्कैन, लेट मी ऑल टेल यू दैट दिस इज अ इन हाउस इंडिकेटर डेवलप्ड बाय विवेक बजाज सर, एंड ये उनका बहुत फेवरेट इंडिकेटर है, एंड इट इज लाइक अ लॉट फॉलोड बाय हिम। एंड इफ यू ऑल मस्ट सी, अगर आप लोग उनका स्टॉक्स को एंड उनके यूट्यूब वीडियोस को या उनके पोस्ट को अब अगर आप लोग फॉलो करते हो, देन आप लोग को दिखेगा एंड आप लोग सुनोगे भी कि ही many time uses this indicator RS 55, he many time uses this word because he actually follows it, and उनका ये मानना है कि कोई भी स्टॉक अगर 55 डेज के अंदर अगर अपने बेंचमार्क इंडेक्स या सेक्टोरल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म करना चालू कर रहा है, देन दो स्टॉक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उस केस के अंदर ये वाला जो इंडिकेटर है RS 55, में आगे जाके आप लोग को RSI भी बताऊंगा, देन ये दोनों इंडिकेटर उनका बहुत लाइक पसंदीदा इंडिकेटर है, लाइक मस्ट गो इंडिकेटर है। एंड ये दोनों इंडिकेटर्स उनके चार्ट्स पे एनी टाइम प्लॉटेड भी रहेंगे। सो आप इस इंडिकेटर्स को इवेंचुअली आप ट्रैक कर सकते हो, इस इंडिकेटर्स को समझ सकते हो, एंड इवेंचुअली यू कैन प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट्स इनटू दी स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंडिकेटर्स। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इनिशियली येस्टरडे अपने निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना चालू किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको उसको बैक टेस्ट करना है, आप 29th में जा सकते हो, एंड 29th में जाके आप चेक कर सकते हो कि सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, एज यू ऑल कैन सी, 29th ये डेट था। 29th को ये जो स्टॉक था, इस स्टॉक ने अपने इंडेक्स आउट परफॉर्म करना चालू किया, एंड देन उसके बाद दैट वाज यस्टरडे, इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ग्रीन में मूव दिया है, विच इज क्लियरली अराउंड अराउंड, और इस स्टॉक ने 650 का क्लोजिंग दिया था, एंड कल इस स्टॉक ने 660 का क्लोजिंग दिया विथ एन हाई ऑफ 664। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 2 से 3% का मूव आया था। सो ऑब्वियसली दिस स्टॉक हैज स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म, तो ऑब्वियसली देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोगों को इंट्राडे स्कैन्स बनाने हैं या इंट्राडे पिक्स करने हैं, या आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो उन सब के लिए ये सारे स्कैन्स काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन सारे स्टॉक्स स्कैन से आपको स्टॉक फिल्ट्रेशन मिल जाएगा, एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि उन सारे स्टॉक्स के अंदर 5 से 10%, 15% का मूव बन जाता है इफ यू प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट्स वेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस स्कैन्स। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स पे। सो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स के अंदर एज ए ऑल एज आई वाज सेइंग कि पहले इट वाज ऑल प्राइस एक्शन, नो इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड एंड दी वोलेटिलिटी ऑफ दो स्टॉक्स। तो अभी हम लोग ने वीकली ब्रेकआउट स्कैन समझा था, तो अभी हम लोग वीकली वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक। सो व्हाट इज दिस? पूरा स्कैन का मॉड्यूल एग्जैक्ट सेम है ना, लेकिन मैं कुछ कुछ टर्म समझा देता हूँ। जैसे एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी, सो आप देखोगे कि हम लोग के डेली वीकली डेली स्कैन्स भी है वॉल्यूम एंड डिलीवरी के, वीकली एंड मंथली स्कैन्स भी है। सो व्हाट इज दिस एवरेज डिलीवरी? एवरेज डिलीवरी इज ए टाइम फ्रेम ऑफ 5 पीरियड्स। दैट इज, अगर आप लोग डेली चेक कर रहे हो तो दैट इज 5 डेज, अगर आप लोग वीकली चेक कर रहे हो तो 5 वीक्स, एंड मंथली चेक कर रहे हो तो 5 मंथ्स। तो व्हाट डज इट से कि एसबीएफसी फाइनेंस स्टॉक के अंदर 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर पिछले 5 वीक्स का एवरेज से 17.9x ज्यादा इस दो दिन के अंदर इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी हुआ है, ठीक है। 12.2x ज्यादा इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हुआ है।
विच मीन्स कि ये जो स्टॉक है ये अभी काफी ज्यादा मोमेंटम है, इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है काफी ज्यादा हाई है, बिकॉज द ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड द डिलीवरी वॉल्यूम्स आर एक्सट्रीमली हाई। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इवन इन फैक्ट कि ये स्टॉक नीचे है, 3.3% डिक्लाइन पे कल पिछले वीक के नाम बंद हुआ था, लेकिन इस स्टॉक के अंदर 18x ज्यादा का डिलीवरी उठ चुका है इन दी पास्ट 2 डेज। दैट इज, अगर आप देखोगे डिलीवरी क्वांटिटी, इट इज अराउंड 6.3 करोड़, 6.3 करोड़ का डिलीवरी उठ चुका है क्वांटिटी, राइट। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको वो सारे स्टॉक समझ में आते हैं जिनके अंदर एक्चुअली काम हो रहा है, वॉल्यूम एंड ट्रेडिंग में काम हो रहा है, राइट। एक्चुअली पीपल आर बाइंग दो स्टॉक्स फॉर डिलीवरी, people are actually considering those stocks for trading purposes or whatsoever purpose it is। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल स्कैन्स पे। एज वी ऑल कैन सी कि टेक्निकल स्कैन, देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निकल स्कैन्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। एंड ऑब्वियसली हम लोग ने इन स्टॉकेज व्हाट वी हैव ट्राइड इज कि वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ओवर हेयर। लेकिन अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि अगर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या कोई टेक्निकल स्कैन मिसिंग है हम लोग के एंड पे, देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर प्लेटफॉर्म, प्लीज आवर सपोर्ट टीम और ऑन आवर सोशल मीडिया। आई विल श्योरली लुक इनटू इट कि हम लोग इन सारे फीचर्स को, इन सारे स्कैन्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाए। देन लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल स्कैन्स। सो बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोग एक एसएमए स्कैन बताता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन्स। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी डेज आप देख रहे हो, 20, 50, 100, उतने दिन का एवरेज, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। तो इसके अंदर जो सबसे कोई भी एसएमएज या ईएमएज जो होता है, उसके अंदर जो सबसे पावरफुल स्कैन होते हैं वो होते हैं क्रॉसओवर स्कैन्स। दैट इज कि कोई भी एक ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस कर रहा है ऊपर से या नीचे से, ठीक है। तो जो दो सबसे मोस्टली फॉलोड एंड मोस्टली वाइडली यूज्ड एंड गुड इन स्कैन्स है, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर है 15 एसएमए, 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो, या 100 एसएमए फ्रॉम बिलो, एंड 50 एसएमए क्रॉसिंग 100 एसएमए फ्रॉम above, which means 100 SMA हो गया, that is a span of 5 months, and 200 SMA हो गया, that is a span of 10 months approx, and 50 SMA is 2.5 months, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग 2.5 महीने का ट्रेंड को हम लोग 5 या 10 महीने के ट्रेंड से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एंड वी आर एक्चुअली सीइंग कि ये जो स्टॉक है ये कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA फ्रॉम बिलो एंड अबव के अंदर तो स्टॉक नहीं है, तो हम लोग 50 SMA एंड 100 SMA को ट्रैक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम बिलो, तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी स्टॉक का जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो अपने उसी स्टॉक के 100 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रहा है। तो अगर आप यूनो मिंडा का अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। हेलो, यस। तो आप देखोगे कि जब भी ये जो पिंक लाइन है ये 50 SMA है एंड जो ब्राउन लाइन है वो 100 SMA है। तो जब भी 50 SMA, जब भी 50 SMA अपने 100 SMA को नीचे से क्रॉस करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो स्टॉक है वो एक बुलिश जोन में घुस रहा है। विच मीन्स कि इस स्टॉक का जो 2.5 मंथ का, दैट इज जो 50 SMA का जो ट्रेंड है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन उसका जो पिछले 5 मंथ का, हम लोग अभी 100 SMA है, तो पिछले 5 मंथ्स का जो उसका ट्रेंड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विच मीन्स आप जब भी देखोगे कि 50 SMA अगर कभी भी अपने किसी बड़े एसएमए को क्रॉस करेगा, देन उस स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्टॉक था एट द प्राइस ऑफ 525, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ तक गया है टिल 591, एंड जब स्टॉक ने वापस क्रॉसओवर दिया एट दैट पॉइंट ऑल्सो वो 534 पे था। तो आप अगर कभी भी, आप क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड्स ले रहे हो, अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स फॉर 2, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 वीक और व्हाट्स एवर इट इज, देन अगर आप लोग क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड्स ले रहे हो ना, दैट इज कि कोई भी एसएमए का क्रॉसओवर या कोई भी ईएमए का क्रॉसओवर, देन खाली क्रॉसओवर्स के बेसिस पे आप लोग अपने एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपका एंट्री आ रहा था एट दिस पॉइंट, देन एट दिस पॉइंट आपका एग्जिट था, देन आप देखोगे कि यहाँ से कैसे ये स्टॉक नीचे गिरा है, राइट। ये स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है, फिर इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे क्रॉसओवर आया
एंड देन फिर ये स्टॉक आप देख सकते हो कि अभी तक स्टॉक के अंदर एक नीचे वाला क्रॉसओवर नहीं आया है, वो तब से फ्रॉम दी लेवल ऑफ 559 वो यहाँ तक गया 757 तक। एंड देन फिर एट दिस पॉइंट स्टॉक के अंदर वापस एक नीचे का क्रॉसओवर आया था। तो दिस इज व्हाट एसएमए क्रॉसओवर डज। अगर आप ये सेम चीज ईएमए देखोगे तो ईएमए के अंदर भी आपको यही सेम चीज समझ में आएगा। क्रॉसओवर से क्या होता है ना, आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट समझ में आता है एंड आपको चेंज इन ट्रेंड समझ में आता है कि कब किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है या उसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। सो दिस वॉज द गोल्डन क्रॉस ओवर। क्योंकि ये बुलिश स्कैन है, अगर आपको डेथ क्रॉस ओवर समझना है तो आप ये स्कैन से देते हो 50 SMA क्रॉसिंग 100 SMA फ्रॉम अबव। अगर कभी भी छोटी एसएमए की लाइन किसी बड़ी एसएमए की लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है तो हम लोग उसको बेरिश ट्रेंड बोलते हैं, तो हम लोग उसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो अब अगर आप एनएलसी इंडिया का चार्ट देखोगे तो एनएलसी इंडिया में आपको दिखेगा कि आप यहीं पे आप बुलिश और बेरिश दोनों का लेवल चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टॉक ने एक बेरिश क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद से वो बेरिश में था। देन फिर यहाँ पे अगेन इस स्टॉक ने बुलिश क्रॉस ओवर दिया। आप देख सकते हो कि 90 रुपीज के लेवल से ये स्टॉक ने 256 279 का हाई बना के फिर ये स्टॉक अब जाके एट द पॉइंट ऑफ 233.75 अब जाके इस स्टॉक के अंदर एक सेल सिग्नल आ रहा है, एग्जिट सिग्नल आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि स्टॉक के अंदर एक क्रॉसओवर आ रहा है, राइट। तो अब ऑब्वियसली आपको आप मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर बी इट एसएमए ईएमए या बाकी इंडिकेटर जो हम लोग अभी आगे समझेंगे, हर इंडिकेटर के थ्रू आप एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स डिराइव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग को अपने उस इंडिकेटर का पूरा मतलब आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग को वो इंडिकेटर आप लोग के लाइक आप लोग को उस इंडिकेटर का पूरा ग्राफ आप लोग को लेना पड़ेगा। इट इज बेटर टू फॉलो 2 or 3 indicators rather than following 15 or 18 indicators। आप तो 2-3 इंडिकेटर पे भी अगर अपना ग्रैप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बना लोगे ना, देन आप लोग देखोगे इवेंचुअली इट विल हेल्प यू आउट अलॉट। सो अब जैसे एनएलसी इंडिया के अंदर एक सेल सिग्नल आ गया जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर एक बुलिश डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है। दैट इज कि ये स्टॉक जो है अब ये बेयरिश जोन में जा रहा है। ऑब्वियसली ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें स्टॉक में ज्यादा सेलिंग आया नहीं है। हो सकता है कि ये एक फेक सेलिंग हो या हो सकता है कि एक्चुअली स्टॉक के अंदर सेलिंग आ रहा है तो ये दिस स्टॉक कैन स्टार्ट फॉलिंग। सो विल हैव टू वॉच आउट। So like this SMA there are multiple n number of indicators जैसे RSI जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला RS55 के साथ RSI भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल दीज आर मोमेंटम इंडिकेटर्स कि आपको ये सारे किसी स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम हो रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल RSI बुलिश, अगर RSI 30 के ऊपर जा रहा है तो उसको बोला जाता है RSI बुलिश। अगर RSI 50 के ऊपर क्रॉस करता है देन उसको बोला जाता है कि RSI ट्रेंड कर रहा है। आरएसआई अगर 70 के ऊपर है देन इट सेज कि आरएसआई ओवरबॉट जोन में घुस रहा है, राइट। इवेंचुअली वाइस वर्सा बाकी के लेवल से। अगर आप लोग विवेक सर को फॉलो करते हो तो आप लोग ने ऑब्वियसली देखा होगा कि विवेक सर आरएसआई और RS59 को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं एंड ही यूजेस देम स्ट्रांगली विथ अ स्ट्रांग बिलीफ कि हाँ ये दो के बेसिस पे उनका जितना भी पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग है ये एक्चुअली plans his entry and exit points on the basis of the RSI and RS55 मॉडल। तो अगर आपको कुछ उनका कुछ भी RS55 एंड RSI का अगर आप लोगों को कुछ भी समझना है फिर ऑब्वियसली आप लोग जाके उनके स्कैन्स को चेक कर सकते हो, उन्होंने ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। तो ऐसे करके वी हैव मल्टीपल एन नंबर ऑफ स्कैन्स। नाउ वी कैन हैव टू सुपर ट्रेंड स्कैन्स। सुपर ट्रेंड स्कैन्स के थ्रू आप लोगों को क्या समझ में आता है कि आप अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल होता है, फॉर एग्जाम्पल सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाई। सो बेसिकली स्टॉक में फेजेस होते हैं कि हर स्टॉक में फेजेस होते हैं कि ये स्टॉक अभी बुलिश जोन में है, ये स्टॉक अभी बेरिश जोन में है। तो अगर कोई भी स्टॉक बुलिश जोन में होता है तो ऑब्वियसली वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक बुलिश जोन में नहीं रहेगा, उसके अंदर एक चेंज आएगा, एक ट्रेंड चेंज आएगा एंड इवेंचुअली वो बेरिश जोन में जाएगा। सेम वे कोई भी स्टॉक एक टाइम तक गिरता नहीं रहेगा अनटिल उसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा खराब है। तो ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक काफी बहुत ज्यादा गिरने का तो उसके अंदर एक सिग्नल चेंज आएगा एंड इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट टू बाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को एप्पल इंडिया दिखाऊं, सो अभी हम लोग इस चार्ट को 1 मंथ कर देते हैं, राइट। सो अगर आप लोग चार्ट में देख पा रहे हो देन यू विल इवेंचुअली सी कि जब जब इस रेड लाइन कोई भी रेड लाइन स्टॉक प्राइसेस के ऊपर है देन इट मींस कि दैट स्टॉक इज हैविंग अ सेल सिग्नल।
एंड जैसे ही ये रेड लाइन ग्रीन में कन्वर्ट होता है एंड द लाइन कम्स बिलो द स्टॉक प्राइसेस, विच मीन्स कि इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग सिग्नल चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस एट दिस पॉइंट लेवल, एट द लेवल ऑफ 986, इस स्टॉक के अंदर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था फ्रॉम सेल सिग्नल। एंड उसके बाद इवेंचुअली ये स्टॉक कहाँ पे जाके एंड हुआ, ऊपर में ऑब्वियसली स्टॉक ने 1153 का हाई बनाया था, एंड स्टॉक ने फिर वापस सेल सिग्नल दिया एट दिस लेवल विच इज एट 1080। दैट इज स्टिल अबव अराउंड 15% ऊपर जाके स्टॉक ने एक सेल सिग्नल दिया। देन ऑब्वियसली फिर ये स्टॉक एक सेल सिग्नल में था, देन ऑब्वियसली अगेन इस स्टॉक में वापस एक बाइंग सिग्नल आया एंड इट रोज टू 1084 से लेके ये दिस स्टॉक मेड अ मूवमेंट टिल 1187, अगेन 10% का मूव था। एंड फिर स्टॉक में आप देख सकते हो कि एक सेल सिग्नल आया, दैट इज की रेड मार्क, एंड वो स्टॉक सीधा 1187 से वो स्टॉक सीधा यहाँ पे आ गया which is straight away 1105, approximately 5% to 7% का मूव, एंड नीचे में ऑब्वियसली इसने और बनाया था, एंड देन द स्टॉक हैज अगेन गिवन अ बाई सिग्नल। सो ऑब्वियसली खाली सुपर टेन के सिग्नल्स के बेसिस पे भी अगर आप इवेंचुअली चेक करोगे विद मिक्सिंग अप विद सम ऑफ और इंडिकेटर्स फॉर सम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, कि अगर हाँ मेरे को स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है सुपर टेन के इंडिकेटर के साथ, तब आप ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर ऐसा पैटर्न बनता है जिसके अंदर आप ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज बुलिश से बेरिश अगर कोई स्टॉक जा रहा है या बेरिश से बुलिश कन्वर्ट हो रहा है, तब आप उस जोन के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो, एंड इसके बेसिस पे काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ऐसे कई सारे स्कैन्स है, बीटा स्कैन्स है। अभी हम लोग के जो लेटेस्ट लास्ट रिलीज किया उसके अंदर हम लोग ने वीकली लेवल पे वीकली आरएसआई लॉन्च किया है, वीकली पैराबोलिक सार लॉन्च किया है, एंड वीकली सुपर टेन लॉन्च किया है। तो ये वीकली स्कैन उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखते हैं टेक्निकल स्कैन, बिकॉज अगर आप लोग कोई भी फंडामेंटल अच्छे स्टॉक में अगर आप टेक्निकल लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन दीज वीकली स्कैन्स आर वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, कि अगर आपको अगर लॉन्ग टर्म लेवल पे इन्वेस्ट करना है, देन आप इन स्कैन्स के बेसिस पे यूज करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर ऑब्वियसली आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फंडामेंटल स्कैन्स। so what we have in fundamental scans, like said, हम लोग ने हर एक पैरामीटर, लाइक इन फंडामेंटल देयर आर आल्सो n नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो हम लोग ने वो सारे पैरामीटर्स को कवर किया है, एंड हम लोग ने उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, सॉल्वेंसी। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, या प्रॉफिट में उनका ग्रोथ आया, या पहले लॉस थे एंड अभी प्रॉफिट में है, या आप इन स्कैन्स के थ्रू ये चेक कर सकते हो हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आज तक का हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट, दैट इज लास्ट 10 years में इन सारे स्टॉक्स ने अपना आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट लॉन्च किया, रिपोर्ट किया है। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम ट्रैक नहीं रखते क्योंकि उस कंपनी को 2 साल ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एमएमटीसी, एमएमटीसी का 2019-3 का प्रॉफिट है 108 करोड़, एंड उसके बाद 2021-22 इस 3 साल में दी कंपनी वाज नॉट एबल टू क्रॉस दिस प्रॉफिट, एंड देन द लास्ट ईयर कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 1562 करोड़, साढ़े 1500 करोड़ का, दैट इज अ स्ट्रेट अवे 14.4x जंप। तो ऑब्वियसली अगर आप इस स्टॉक का चार्ट भी देखोगे तो आपको स्टॉक के चार्ट में समझ में आएगा कि कैसे मार्केट ने इसके जो इसका जो इतना प्रॉफिट जंप हुआ उसको कैसे रिस्पेक्ट किया है। यू कैन सी कि इवेंचुअली दिस स्टॉक जो लास्ट इस इसी टाइम पे अगर इस स्टॉक ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस किया होगा, तो एट दैट टाइम दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज, एंड देन इवेंचुअली दिस स्टॉक मेड अ हाई ऑफ 94 रुपीज। तो आप देख सकते हो कि विद इन द स्पैन ऑफ 1 year दिस स्टॉक गेव अ रिटर्न ऑफ 300 रिटर्न। सो ऐसा नहीं है कि आप खाली टेक्निकल के बेसिस पे ही आप स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो या आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल के थ्रू भी अगर आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को कवर करते हो जो फंडामेंटली बहुत साउंड है या फंडामेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को, अपने नंबर्स को, देन ऑब्वियसली इट विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्टॉक्स। आप जैसे टर्न अराउंड स्टोरी, कौन सा स्टॉक है जो लास्ट ईयर तो लॉस में था अभी प्रॉफिट में है, या कंसिस्टेंटली जो लोग हर साल अपने ईपीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, या हाई पैट मार्जिन है, हाई एबिटा मार्जिन है, इसके थ्रू आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स, सॉल्वेंसी स्कैन्स, कैश फ्लो स्कैन्स, वैल्यूएशन स्कैन्स। अगर आपको ये चेक करना है कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अपने इंडस्ट्री के पी के ऊपर ट्रेड करे, इंडस्ट्री के पी के नीचे ट्रेड करे,
या बहुत लो पी है जिन स्टॉक्स का, या बहुत हाई पी है, आप इसके थ्रू ट्रैक रख सकते हो। फिर अगर आप लोग को डिविडेंड स्टैंस चेक करना है कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं है, एंड दे ओनली इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, सो फॉर ऑल ऑफ देम दे कैन इन्वेस्ट इन कंसिस्टेंटली। आप लोग इसी स्कैन्स के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हर साल डिविडेंड पे कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस 59 टाइम्स डिविडेंड पे कर चुका है लास्ट के 14 सालों में। देन वी हैव शेयर होल्डिंग स्कैम्स। अगर आप लोग शेयर होल्डिंग बेसिस पे, अगर आप लोग स्टॉक्स फिल्टर करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, या एफआई डीआई अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, या म्यूचुअल फंड इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप वो सारे जो पैरामीटर्स आप वो इन सारे स्कैन्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हो। देन वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन्स, स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन, हम लोग अभी उसके अंदर नहीं जाते। देन वी हैव कैंडलस्टिक स्कैन्स। जैसे प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना मार्केट में, प्राइस एक्शन हो गया, वॉल्यूम एंड डिलीवरी हो गया, वैसे कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सिंगल कैंडलस्टिक दैट इज OHLC ऑफ एनी पीरियड, आप चाहे 5 मिनट का कैंडल देखो, आप चाहे 1 घंटे का कैंडल देखो, चाहे एक दिन का कैंडल देखो, या यू गाइस कैन सी वन वीकली कैंडल और वन मंथली कैंडल, एक कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, दैट फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंडिकेटिव, एंड उस फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके भी काफी सारा सिग्नल्स लिया जा सकता है। बिकॉज वो फॉर्मेशन आपको काफी कुछ मार्केट में सारे जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं उनका बिहेवियर, प्राइस ट्रेंड, डिमांड सप्लाई, आपको उस खाली कैंडल से भी काफी कुछ पता चल सकता है। सो टू कैप्चर दोज ट्रेंड्स व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड कैंडलस्टिक स्कैन्स। अगर आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर बुलिश लेवल कंटिन्यूशन हो रहा है, तो अब ये नेकलाइन अपसाइड वासु की है। उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से स्कैन है जिसके अंदर बेरिश से बुलिश रिवर्सल आ रहा है, दैट इज अभी तक वो सारे स्टॉक्स बुलिश में थे, बट अब बेरिश में थे, अब बुलिश में आ गए, तो उनके लिए आप आपके पास ये सारे पैटर्न्स है, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, तो ये सब के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो। So this was all about the scans. So now let's see what are the queries we have. विशाल कानिंदे जी, आप अगर आपका ये कोई भी सेशन मिस होता है, देन प्लीज डोंट डेट, ये सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम, या सोशल मीडिया पे आप हम लोग को रीच आउट करिए, एंड आपको जो इसके रिकॉर्डिंग सेशंस है वो सारे आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे। और हेमंत वसंत जी, जैसे मैंने कहा कि ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग सेशंस अपलोड हो जाते हैं, ऑब्वियसली इसके रिकॉर्डिंग सेशन अपलोड होने में 1 से 2 दिन लगता है। देन आप प्लीज हम लोग के सपोर्ट टीम एंड जो हम लोग के सोशल मीडिया टीम उनको रीच आउट करिए, एंड दे विल इवेंचुअली गाइड। अगर आप क्लब या सोशल यूजर है, देन आप सोशल में जाके भी चेक, ऊपर में सर्च कर सकते हो रिकॉर्डिंग ऑफ स्मार्ट सेशन या स्मार्ट सेशन, एंड वहां पे आपको वो मिल जाएगा। रुपेश जोशी जी, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन्स की तरफ ही बढ़ेंगे, तब एंड देन आई विल शेयर द कॉम्बिनेशन पीडीएफ। और रुपेश जी, आपको किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको इंडिकेटर ऐड करना है चार्ट के अंदर, तो आप ऐसे जाके इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे चार्ट में जाना है, एंड देन ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहे हैं, अब इसमें जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी टोटल आप मैक्स में 8 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे आपको बॉक्स खुल जाएगा ना, यहाँ पे आपको जो भी जाके इंडिकेटर ऐड करना है आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करने हैं, देन आप यहाँ पे लेवल लेवल पे जाके टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, इंट्राडे, डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट्स को भी चेक करने के लिए। अ, कपिल बलानी जी, मेजर स्टॉक्स इज अ कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप NSE एंड BSE 500 स्टॉक्स। मल्लिकार्जुना मूर्ति जी, RS 55 and RS benchmark index, RS market are the same, they are not different. RS market is RS 55 only, RS sectoral is sectoral index के साथ comparison,
RS मार्केट इज बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपैरिजन। सुरेश कश्यप जी जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है, गोल्डन क्रॉसओवर इज 50 SMA क्रॉसिंग 200 SMA और 100 SMA फ्रॉम बिलो। सुभाष चौधरी जी आपको देखना पड़ेगा कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आप किस लेवल पे ले रहे हो। ऑब्वियसली आपको जरूरी नहीं है कि आपको उस एग्जिट पॉइंट तक का वेट करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का है, या आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, अगर आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल रहा है 5 to 10%, 15% का, देन ऑब्वियसली यू कैनॉट यू आप बिना एग्जिट पॉइंट का वेट किए हुए आप ऊपर में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सुहेल जी नहीं, मार्क मिनवी जी का स्कैन अवेलेबल नहीं है। देवी मोहंती जी आपको अगर स्टॉक का स्पेसिफिक रिसर्च करना है, देन आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाके उसका एक स्कैन्स का टैब है, वहां पे चेक कर सकते हो कि उस स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर कौन सारे स्कैन्स आ रहे हैं। हाई डिलीवरी परसेंटेज, सुहेल तहसीलदार जी, हाई डिलीवरी परसेंटेज का मतलब हुआ कि अगर आज मेरा टोटल 100 का वॉल्यूम था, उसके अंदर अगर मेरा 75 से ज्यादा का डिलीवरी उठा, राइट, तो वो 75% से अगर मेरा 75% से ज्यादा अगर मेरा डिलीवरी परसेंटेज है, तब हम लोग वो सारे स्टॉक्स हाई डिलीवरी परसेंटेज में आते हैं। लेकिन हाई ट्रेड क्वांटिटी हो गया, वो हो गया ट्रेडिंग वॉल्यूम। एंड डिलीवरी क्वांटिटी हो गई कि आप डिलीवरी क्वांटिटी चेक कर रहे हो। जो आप मैंने परसेंटेज में बताया वो आप डिलीवरी क्वांटिटी चेक कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है, डिलीवरी परसेंटेज एंड डिलीवरी क्वांटिटी दोनों आपस में ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, एंड दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है किसी दिन किसी स्टॉक में 100 का ही डिलीवरी हुआ हो, एंड वो 90% डिलीवरी हुई हो, राइट, तो उसका डिलीवरी क्वांटिटी बहुत कम था बट डिलीवरी परसेंटेज बहुत हाई था। एंड ऐसा हो सकता है कि उसी स्टॉक के अंदर नेक्स्ट डे 1000 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई है, जिसके अंदर से सिर्फ 40% ही डिलीवरी हुई है एंड सिर्फ 400 की ही डिलीवरी हुई है। तो उस बेसिस पे वो कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। वेना मिया जी, विच स्कैन टू यूज प्रेडिक्ट ब्रेकआउट, जैसे मैंने आप लोग को बोला, जितने भी प्राइस स्कैन्स के अंदर पीरियोडिक स्कैन है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम ब्रेकआउट, वीकली, मंथली ब्रेकआउट, आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो। जो भी सारे स्टॉक्स उन सारे पीरियड्स के जोन्स में है, वो सारे के सारे ब्रेकआउट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। बीपी पापना जी, अभी हम लोग माई कॉम्बो स्कैन्स को बनाना यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। सुरेश कश्यप जी, जैसा मैंने बोला, गोल्डन क्रॉसओवर इज 50 SMA और 50 EMA क्रॉसिंग 100 SMA और 200 SMA फ्रॉम बिलो। और डी घोष जी, अभी हम लोग का बैक टेस्टिंग सिर्फ 1 वीक के लिए अवेलेबल है। आपका जो रिक्वेस्ट है फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम, ये हम लोगों ने नोट कर लिया है। ऑब्वियसली हम लोग इसको आगे जाके चेक करेंगे। और केबीएस राव जी, RSI एंड RS आर डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो चलिए अब हम लोग माई कॉम्बो स्कैन के साथ आगे, माई कॉम्बो स्कैन में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को माई कॉम्बो स्कैन में क्या करना है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये है विवेक सर का PDF। विवेक सर का जो कॉम्बिनेशन स्कैन का PDF है, ये PDF मैं अभी शेयर कर दूंगा। एंड अभी हम लोग इसी में से किसी एक कॉम्बिनेशन स्कैन को बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को माई स्टॉक में जाके माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना है, एंड यहाँ पे फिर हम लोग ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग फीफा का कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। और लेट मी ऑल टेल यू कि इन मैक्स हम लोग टोटल में 20 कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हैं। तो मेरा 20 कॉम्बिनेशन स्कैन का लिमिट फुलफिल हो गया है, तो इसलिए हम लोग वापस से फीफा स्कैन बनाते हैं। तो ये हम लोग का फीफा कॉम्बिनेशन स्कैन बन गया। तो व्हाट इज फीफा? फीफा इज, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। मतलब हम लोग वो सारे स्टॉक्स को ढूंढेंगे जिनके अंदर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रहा है, एंड उसका प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब हम लोग एक एक करके सारा स्कैन ऐड करते हैं।
क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो आप एड स्कैन में जाओगे एंड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, एंड अगर आपको इवेंचुअली पता है कि ये कहाँ पे है वाला स्कैन, तो आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन ये मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद बाकी स्कैन है इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स, ये भी मैंने ऐड कर लिया। अब जो लास्ट कैन बचा वो है कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। तो मैंने कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन पे ऐड कर लिया। अब हम लोग माई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हैं, तो हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को वो कॉम्बिनेशन स्कैन से अचीव क्या करना है। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ कॉम्बिनेशन स्कैन हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना के नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए आप लोग को उस कॉम्बिनेशन स्कैन का एक ऑब्जेक्टिव डिराइव करना पड़ेगा। जैसे इस केस में फीबा है कि मेरे को उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर करना है जिसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एंड साथ ही साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसके बेसिस पे फिर हम लोग स्कैन ऐड करेंगे। अगर आपका उस कॉम्बिनेशन स्कैन का अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, देन आप जिस बेसिस पे स्टॉक स्कैन ऐड करोगे वो आपको मिसलीड कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले माई कॉम्बिनेशन स्कैन के लिए, अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, तो उसके लिए आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि हम लोग आउटपुट पे जाए, मैं पहले आप लोग को एक ब्रीफ में मैं ये समझाता हूँ कि फीफा के अंदर ये सातों स्कैन क्यों यूज किया गया। सबसे पहले प्राइस एक्शन। तो ये माना जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर अपने हाई लेवल्स पे है, अगर अपने हाई जोन के अंदर है, सो इट इज वेरी क्लियर कि वो सारे स्टॉक्स काफी स्ट्रांग है। विच मीन्स कि अगर क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, अगर जो स्टॉक इसके अंदर क्वालिफाई करता है, मतलब वो अपने 52 वीक के हाई लेवल्स पे है, मतलब ऑब्वियसली वो अपने उस एक साल के अपने हाईएस्ट लेवल्स पे है। तो विच इज क्लियर कट ये स्ट्रॉन्ग जो है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन टेक्निकल बेसिस, प्राइस एक्शन बेसिस पे। ठीक है। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ प्राइस एक्शन का एक स्कैन यूज किया क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द प्राइस एक्शन। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे, विच इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। तो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट में आने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट किस बेसिस पे। तो उसके लिए व्हाट वी हैव एडेड इज इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी? रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे रही है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट आया है क्या? तो दैट इज इंप्रूव आरओई। आरओसी इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जो अपने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है फॉर जनरेटिंग इट्स ऑपरेशन, फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर ऑपरेशन, तो वो उस ऑपरेशन से जो पैसा बना रही है, जो रिटर्न जनरेट कर रही है, क्या वो इंप्रूव हो रहा है क्या? दैट इज व्हाट इट इज, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इस केस में हम लोग को क्या समझ में आया कि हाँ, जो स्टॉक्स जिन स्टॉक्स का आरओई भी इंप्रूव हो रहा है, आरओसी भी इंप्रूव हो रहा है, मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स को भी रुपया बना के दे रही है, एंड वो कंपनी जितना कैपिटल अपने बिजनेस में लगा रही है उससे भी रिटर्न जो जनरेट कर रही है उसको भी इंप्रूव कर रही है। विच मीन्स कि कंपनी इज एफिशिएंटली वर्किंग, उस कंपनी का जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशंस पे। सो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यू गाइस मस्ट हैव हर्ड टॉप लाइन बॉटम लाइन नंबर्स। सो व्हाट आर टॉप लाइन बॉटम लाइन ऑपरेटिंग नंबर? सो टॉप लाइन हो गया सेल्स, कि कंपनी धंधा कितना बना रही है, कंपनी कितना का सेल्स कर रही है। बॉटम लाइन नंबर जो गया नेट प्रॉफिट, कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कंपनी जितना भी धंधा कर रही है उसमें कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया एबिटा, कि कंपनी का जो मेन कोर ऑपरेशन है, अगर कंपनी जूता बेच रही है, इफ अ कंपनी सेलिंग शूज, तो उसको खाली शूज प्रोक्योर करने में, शूज को बनाने में और शूज को सेल करने में, जो शूज को सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका एबिटा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ बाकी सारे चार्जेस। तो तीन पैरामीटर हो गए, दैट इज सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट। तो ये तीन पैरामीटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिटरमाइनिंग किसी भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ।
ठीक है, कंपनी का ऑपरेशनल स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग ये तीन स्कैन ऐड कर रहे हैं एंड अगर कोई भी स्टॉक इन तीन स्कैन के अंदर फिल्टर कर रहा है कि हाँ वो उसका नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, उसका एबिटा भी ग्रोथ हो रहा है, सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है, वाई तीनों? क्योंकि आपको कई बार ऐसी इंस्टेंसेस दिखेंगे कि कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है बट नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, सेल्स ग्रो हुआ ही नहीं है बट नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ। तो ये सारे के सारे रेड सिग्नल्स होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने रिपोर्टिंग कुछ गड़बड़ किया है, या कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन लागू हो गया है, या कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, या कंपनी हो सकता है फॉल्स रिपोर्टिंग कर रही है। तो इसीलिए हम लोग ये तीन स्कैन ऐड करें कि जिस भी स्टॉक का सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट तीनों के अंदर ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ आ रहा है, चाहे वो कितना ही हो, लेकिन अगर तीनों में ग्रोथ आ रहा है तो विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर अ गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। एंड देन इन द लास्ट इट इज कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। सो व्हाट इज इट? कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस हो गया कि कोई भी कंपनी अगर कैश अच्छा खासा जनरेट करी है, सीएफओ मतलब कैश अच्छा खासा जनरेट करी है अपने ऑपरेशन से एंड कंसिस्टेंटली जनरेट करी है, मतलब उस कंपनी के पास काफी अच्छा कैश है फॉर आगे का ऑपरेशन, फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। तो उस कंपनी को कभी भी वर्किंग कैपिटल के लिए या अपने आगे के ऑपरेशन को फंड करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए दिस इज हाउ फीपा इज कंस्ट्रक्टेड, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। तो अब आते हैं हम लोग स्टॉक्स पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो पूरा मॉडल है दैट इज एग्जैक्टली लाइक दी स्कैन मॉड्यूल। यहाँ पे भी आपको ये फिल्टर दिखेगा जहाँ के बेसिस पे आप और फर्दर फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे भी डाउनलोड ऑप्शन है, आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ मेरा स्टॉक्स मैंने आप लोग को बताया ही है। यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि आप लोग यहाँ पे परफेक्ट मैच दिख रहा है। परफेक्ट मैच का मतलब है कि कोई भी स्टॉक जो साथ के साथ स्कैन को क्वालिफाई करता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 7 आइकन्स दिख रहा होगा। लेकिन नीचे में जाके आपको ये ऑलमोस्ट देयर का सेक्शन में दिखेगा। वाई ऑलमोस्ट देयर? कि कई बार होते हैं कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट ऑल इंडिकेटर्स को क्वालिफाई करते हैं बट एक या दो इंडिकेटर को रह जाते हैं। तो हम लोग को उन अच्छे स्टॉक्स को भी मिस नहीं करना है, इसलिए हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया है। तो व्हाट इज ऑलमोस्ट देयर? आप जितने भी स्कैन्स ऐड कर रहे हो माई कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर, विच इज मैक्सिमम 10, अगर कोई भी स्टॉक ऑल स्कैन्स का 75% स्कैन्स को क्वालिफाई करता है तो वो ऑलमोस्ट देयर के अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि 6/7 इज ऑलमोस्ट मोर देन 75%, इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। अब माई कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आप लोग को स्कैन में बैक टेस्टिंग का समझाया था, सो आप लोग ये देखिए कि माई कॉम्बिनेशन स्कैन में कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, काफी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई माई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो फॉर इंट्राडे पर्पस, कि आपको नेक्स्ट डे इंट्राडे के अंदर आप लोग को स्टॉक्स फिल्टर करना है एंड उस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। एंड आपने ये सारे स्कैन बनाए, आपने इंट्राडे के लिए एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया अच्छा खासा, एंड देन फिर आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस अलग अलग दिनों में जाके कि हाँ उन सारे इस माई कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपको कैसे हेल्प कर रहा है, वो आउटपुट क्या नेक्स्ट डे एक्चुअली इंट्राडे में परफॉर्म कर रहा है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है देन यू कैन मूव अहेड विद योर कॉम्बिनेशन स्कैन। इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग देन ऑब्वियसली आप वापस से स्कैन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, किसी भी स्कैन को हटा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो और फिर नया स्कैन ऐड कर सकते हो। इसके बेसिस पे आप बैक टेस्टिंग करके आपका जो कस्टमाइज स्कैन है, जो पर्सनल स्कैन है, इसको आप इवेंचुअली ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आपको आगे जाके हेल्प करेगा और स्टॉक फिल्ट्रेशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट आर दी क्वेरीज। और सुहेल कैसे था जी, लॉन्ग बिल्डअप अगर आपको चेक करना है तो आप डिलीवरी बेसिस पे चेक कर सकते हो, या फ्यूचर्स में अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उसके बेसिस पे चेक कर सकते हो। तो हम लोग का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्कैन के अंदर, और फ्यूचर्स का एक स्कैन है एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप, वो सब स्कैन में आप जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। मैंने पीडीएफ यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप लोग प्लीज यू ऑल कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड प्लीज गो एंड श्योरली मेक ऑल दी कॉम्बिनेशन स्कैन्स। सो अब हम लोग आते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। तो आप लोग एज यू ऑल सी इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मार्केट चालू होता है 9 o'clock पे, 9 से 9:07 प्री मार्केट सेशन रहता है, 9:08 AM
जो प्री मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे 9-8 पे भी आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे 9-8 पे सारे स्टॉक्स का जो प्री मार्केट प्राइसेस है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइस मूवर्स में ये सेक्शन अपडेट हो चुका है। एंड फ्रॉम 9:15 इटसेल्फ हर मिनट पे ये जो सेक्शन है ये अपडेट होता रहता है। राइट, तो ट्रेंडिंग स्टॉक से आपको और कहीं जाने का दरकार नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन से स्टॉक्स है जो डैट ड्यूरिंग द इंट्राडे, कौन से स्टॉक्स है जो ट्रेंड में है, गेनर साइड पे है या लूजर साइड पे है, तो उससे आपको क्लियर कट यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक्स गेनर साइड पे है, लूजर साइड पे है। एंड देन आप इवेंचुअली उन स्टॉक्स को आगे ट्रैक रख सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस मूवर्स के अंदर दो टैब है, गेनर्स एंड लूजर्स। ऑल्सो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन भी है एंड फिल्टर ऑप्शन भी है। बाय इंपॉर्टेंस क्या क्या फिल्टर कर सकते हो कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि आज बीएससी स्टॉक्स चल रहे हैं तो आप बीएससी पीएससी स्टॉक्स को फिल्टर लगा सकते हो ना, आप चेक कर सकते हो कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में है। देन ये वॉल्यूम ब्रोकर्स। तो वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसबीएफसी फाइनेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एवरेज वॉल्यूम आपको दिख रहा है। सो जैसे ही इंट्राडे के अंदर दैट वाज यस्टरडे एसबीएफसी फाइनेंस को वॉल्यूम 2498923 को क्रॉस किया था, वैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका था। तो जैसे ही आपको समझ में आएगा कि कोई स्टॉक आपको ऐसा मिल रहा है जो स्टॉक अपने एवरेज वॉल्यूम को, पिछले 5 डेज के एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है, मतलब उस स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी आप देख सकते हो कि उस 30 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा अगर कल ट्रेड हुआ तो उसके बाद आप जो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स है, हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट पार्ट जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो है ये 52 वीक हाई लो एंड 50 एंड ऑल टाइम हाई लो। तो अब यहाँ पे आपको इंट्राडे के अंदर ही इफ यू कीप कमिंग टू दिस टैब इधर 52 वीक हाई लो, इधर 52 वीक हाई लो और ऑल टाइम हाई लो, आपको यहाँ पे इंट्राडे के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि विच आर दो स्टॉक्स दैट हैव जस्ट गिवन अ 52 वीक हाई ब्रेकआउट या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट या ऑल टाइम लो ब्रेकआउट और 52 वीक लो ब्रेकआउट। विच मीन्स कि आपको ईओडी तक का वेट करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा इस सेक्शन में। आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप इंट्राडे के अंदर ही इस दोनों सेक्शन के थ्रू आप चेक कर पाओगे। जैसे ही कोई स्टॉक यहाँ पे आता है विच मीन्स कि वो स्टॉक के अंदर एक नया हाई लेवल बना है, इधर इट्स ऑल टाइम हाई और इधर इट्स 52 वीक हाई। सो बहुत हाई चांसेस है कि वो स्टॉक और आगे बढ़ेगा एंड ये जो नया ऑल टाइम हाई है ये आगे और जाके बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो आप इंटरडे के अंदर ही आप ये स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो फ्रॉम 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो इटसेल्फ, कि ये सारे स्टॉक्स के अंदर आप लोग अच्छा खासा एक इंटरडे का जो ऑल टाइम ब्रेकआउट वाला जो तुरंत का मूव आता है आप लोग उसको कैच कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक है जो बहुत दिनों बाद आज ऑल टाइम हाई दिया एंड ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि 5 इयर्स के बाद अगर ऑल टाइम हाई आया है देन वो स्टॉक बहुत हाई चांसेस है कि वो स्टॉक और ऊपर बढ़ेगा या और आगे स्विंग के लिए बढ़ेगा। then obviously you can filter out those stocks and take positions in those stocks for your swing trades or positional trades. And then we have the most visited section. यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स है जिनको सबसे ज्यादा विजिट किया गया है ड्यूरिंग दैट इंट्राडे ऑन दैट डे itself. सो लाइक आई सेड आप प्राइस मूवर्स के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स है जो गेनर लूजर साइड में जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्राइस मूवमेंट हो रहा है। वॉल्यूम शॉकर्स के थ्रू आप जिन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम का मूवमेंट हो रहा है दैट इज शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो ट्रैक रख सकते हो। 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स के अंदर नया 52 वीक हाई लो या नया ऑल टाइम हाई लो लग रहा है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एंड अगर आप लोग खाली ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही यूज करोगे इंट्राडे के अंदर एंड अगर आप लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आप लोग को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इंट्राडे के अंदर। अब लाइक आई सेड इन दी बिगनिंग की मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि हाउ टू यूज स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑल टुगेदर इन सिंक, जिससे आपका जो एनालिसिस है एंड आपका जो स्टॉक पिकिंग है वो बेटर इंप्रूव हो जाए। तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इन्वेस्टर आउट देयर और एनी ट्रेडर आउट देयर टू फिल्टर आउट एंड स्क्रीन 5,000 स्टॉक्स ड्यूरिंग इंट्राडे, टू डू द मार्केट एनालिसिस ड्यूरिंग इंट्राडे। क्योंकि एनालिसिस जो भी होती है ना वो मार्केट के बाद होती है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट्स खत्म हो जाते हैं एंड हम लोग का रात को 7-7:30 तक यूडी का डेटा पब्लिश हो जाता है, देन आप 7-7:30 के बाद आप लोग के पास सबके नोटिफिकेशन आता है कि ये स्टॉकेज एंड ऑफ द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड। तो उसी टाइम पे आप स्टॉकेज को लॉग इन करो एंड लॉग इन करके आपके जो फेवरेट स्कैन्स है जो आप इतने दिन से यूज करते आ रहे हो या आप स्टॉक स्कैन्स आइडेंटिफाई करो या इन सारे कुछ स्कैन्स का लिस्ट बना लो कि जिन स्कैन्स को आपको डेली बेसिस पे चेक करना है कि या इन सारे स्कैन्स को मेरे को डेली बेसिस पे चेक करना है।
फॉर नेक्स्ट डे मार्केट सेशन या आने वाले दिनों के लिए। एंड देन फिर आपका जो माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जो आपका कॉम्बिनेशन स्कैन बना हुआ है, आप उसमें जाके चेक करो कि आपके क्या आउटपुट आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज मार्केट एक्शन। अगर आपका कोई माई कॉम्बिनेशन स्कैन नहीं बनाया हुआ है, देन प्लीज गो एंड ट्राई एंड मेक सम कॉम्बिनेशन स्कैन्स। आप ट्राई करोगे, अब जैसे जैसे अगर आपको कुछ भी इंडिकेटर नहीं समझ में आ रहा है, देन अगर आपको कुछ भी इंडिकेटर नहीं समझ में आ रहा है किसी भी स्कैन का, देन आप लोग प्लीज उसके आई सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि वो इंडिकेटर क्या है, एंड इवेंचुअली उन सारे स्कैन्स को आप लोग अपने माई कॉम्बिनेशन स्कैन में ऐड कर सकते हो। एंड देन माई कॉम्बिनेशन स्कैन के थ्रू आपको जो स्टॉक्स का लिस्ट मिलेगा, उन स्टॉक्स की लिस्ट को जस्ट यस। सो आई वाज सेइंग कि आप लोग ने माई अपना माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाया, एंड माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर जो आउटपुट आ रहा है, आप उस आउटपुट को आप फर्दर फिल्टर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला फिल्टर यूज करके। और एल्स आप उन सारे आउटपुट को ट्रैक रख सकते हो कि उन सारे आउटपुट में आपको बेटर लग रहा है। एंड देन डेली मार्केट चालू होने के पहले, या तो मॉर्निंग में या तो पिछले रात को ही, और या आप लोग न्यूज स्टडी कर सकते हो, एंड 5 to 7 स्टॉक्स का, मैक्स 10 स्टॉक्स का आप लोग लिस्ट बना सकते हो कि हाँ इन 5 to 7 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स को आपको डेली बेसिस पे इंटरडे के अंदर चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो, और एल्स अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका माइंडसेट अलग होगा कि आपको स्विंग के लिए स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है कि हाँ कल इन सारे स्टॉक्स के अंदर मेरे को स्विंग के लिए पोजीशन करना है। एंड देन जैसे ही मार्केट सुबह चालू होता है एट 9 8 AM या 9:15 AM, आप आके ट्रेंडिंग स्टॉक्स में चेक कर लो कि आपके जो स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हुए हैं, क्या वो स्टॉक्स कोई भी सेक्शन में, प्राइस मूवर में, वॉल्यूम शॉकर में, 52 भी खाई लो, ये सब के अंदर है क्या नहीं। अगर वो ऑलरेडी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन सारे स्टॉक्स को आप लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। सो विच विल एक्चुअली हेल्प यू ऑल टू take your investments and take your positions more confidently and more more effectively, क्योंकि आपका जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी पहले से हुआ हुआ है। एंड ड्यूरिंग द मार्केट एनालिसिस करने से जो आप लोग को जो प्रेशर होगा एंड जो आप लोग से जो गलती होने की चांसेस है वो सारी नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो पहले से लेवल्स मार्क्ड रहेगा कि हाँ आप लोग को इन लेवल्स पे बाई करना है, या इन स्टॉक पे बाई करके आपको इन इतना दिन तक होल्ड करना है, या इंट्राडे के अंदर आपको इस रिस्क रिवॉर्ड पे आप लोग को काम करना है। तो दिस इज हाउ आप तो यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हम लोगों ने सालों से देखा है, हम लोग के जो पुराने कस्टमर्स हैं जो काफी सालों से यूज कर रहे हैं, उनसे बातें करके रिसर्च करके हम लोग को पता चला कि दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर ऑल ऑफ देम, जो लोग मार्केट में नए हैं एंड जिन लोग का ट्रेडिंग इज नॉट देयर प्रोफेशन, बट दे डू इट फॉर देमसेल्व्स। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अगर मार्केट को डेली मार्केट बंद होने के बाद शाम को या अर्ली मॉर्निंग अगर आप आधी घंटा टाइम दे पाओ, तो आप देखोगे कि ये जो आधी घंटा का टाइम आपको एक्चुअली आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम लोग एक फटाफट कॉम्बिनेशन स्कैन्स का करते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आए। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है विथ रिस्पेक्ट टू माई कॉम्बिनेशन स्कैन या ट्रेंडिंग स्टॉक्स, देन प्लीज आप लोग मेरे को बता दीजिए। प्लीज reach out your queries to me right now. आई गेस कोई भी क्वेरी नहीं है। मैंने फिर से कॉम्बिनेशन स्कैन का पीडीएफ विवेक सर का शेयर कर दिया है। एंड शैलेश जी, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ कि कॉम्बिनेशन स्कैन कैसे क्रिएट होता है। आप आप लोग को यहाँ पे माई स्टॉकेज में जाना है। माई स्टॉकेज में माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना है। एट मैक्स आप लोग 20 कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो। तो वापस से आप लोग को यहाँ पे अपने एक ऐड कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करना है, एंड आप लोग को जो भी नाम देना आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फीफा एंड फीफा 2, एंड मैंने ये ऐड कर दिया। इसके बेसिस पे मेरा कॉम्बिनेशन स्कैन क्रिएट हो गया। एंड देन इवेंचुअली आप यहाँ पे जाके ऐड स्कैन कर सकते हो, आपको जो भी स्कैन ऐड करना है आप यहाँ पे एक एक करके सारा स्कैन ऐड कर सकते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन हो गया, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, हाई हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, ये तीनों से मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया। देन इम्प्रूव्ड आरओई आरओसी एंड कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। दिस इज हाउ माय कॉम्बिनेशन स्कैन इज क्रिएटेड, एंड देन मैं आगे जाके अपना स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकता हूँ। 1.54 जी, प्लीज नोट दैट RSI 55 कुछ नहीं होता, इट इज RS 55, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 55 डेज। RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो 14 डेज के लिए होता है, एंड RS 55 इज डिफरेंट। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं RS 55 एंड RSI इज डिफरेंट। और शादी करो जी, फीपा स्कैन में एंट्री और एग्जिट। जैसे फीपा स्कैन में आपको जो भी स्टॉक्स मिल रहे हैं वो सारे स्टॉक ऑब्वियसली फाइनेंशियली इंप्रूव कर रहे हैं, एंड वो स्टॉक काफी ज्यादा प्राइस एक्शन में है। तो ऑब्वियसली आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि वो अपने 52 वीक हाई लेवल्स को बना के ऊपर से बना के नीचे आ रहे हैं, या 52 वीक हाई लेवल्स के काफी ज्यादा पास है। अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा पास है एंड वो एक नया 52 वीक हाई बना सकते हैं, देन ऑब्वियस देन ऑब्वियसली आप लोग उस स्टॉक्स के अंदर अपना एंट्री ले सकते हो। एंड जब वो स्टॉक अगर 52 वीक हाई बना लेने का अच्छा मूव दे दे, तो अब उसके अंदर आप लोग अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। अगर किसी स्टॉक के अंदर कोई स्टॉक अपना 52 वीक हाई बना के नीचे आ रहा है, देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वापस से रिटेस्ट आए, ऐसा कुछ आए। और राजन जी, वन डे चार्ट में अगर लाइन चार्ट आ रहा है तो वन डे चार्ट में कैंडल स्टिक चार्ट नहीं आएगा। अभी हम लोग इंट्राडे कैंडल्स प्रोवाइड नहीं करते, दैट इज 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का। आप आप मंथली एंड वीकली चार्ट या डेली चार्ट में जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट आ जाएगा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्कैन्स होते हैं, तो इट इज ऑल डिपेंड कि आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या स्ट्रैटेजी है। एंड मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ कि अगर आप खुद वर्क करके, खुद मेहनत करके, अगर आप कोई अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हो या कोई स्कैनर बना रहे हो, एंड आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो उसका ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग किसी की बोला बोली, अगर आप किसी के स्कैनर में जाओगे, आप किसी और का स्कैन्स को यूज करोगे, तो इट इज माइट पॉसिबल कि आपको लॉसेस हो या आपके नुकसान जाए, क्योंकि सामने वाले का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सामने वाले का जो रिस्क माइंडसेट है, वो बहुत अलग हो सकता है, उसका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो बहुत अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे शायद से उसने वो बनाया हो। तो इट इज बेटर कि आप अपना एनालिसिस, अपना जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जो रिस्क रिवॉर्ड इश्यूज, आप खुद एनालाइज करो, एंड उसके बेसिस पे आप अपना स्कैनर्स बनाओ एंड एंटी एग्जिट्स प्लान करो। रुपेश जी, ये PDF डाउनलोड होके आपके फाइल सेक्शन में जाएगा, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, और अगर आप लैपटॉप या पीसीयू से कर रहे हो तो आपके डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। आप लोग की अगर कोई भी क्वेरीज है नितेश जी या बापना जी, देन प्लीज आप लोग सपोर्ट टीम में रीच आउट करिए कि वहाँ पे आप लोग को ऐसी ऐसी क्वेरीज आ रही है, देन फिर श्योरली हम मैं देखूंगा कि मैं उसको कैसे आगे रीच आउट करूँ, या मैं आप लोगों को कैसे और आगे हेल्प कर पाऊँ। सो आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड मैंने कोशिश करके सारी आप लोग की क्वेरी शेयर कर दी है, और मतलब सॉल्व कर दी है। आप लोग को कोई भी और क्वेरी है या आप लोग की कोई भी और रिक्वेस्ट है, देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम, और ऑन सोशल मीडिया। एंड अगर आप लोगों को कोई बात करना है, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, एंड विल श्योरली लुक इनटू इट कि हम लोग आपकी कैसे आप लोग की मदद कर पाए, कैसे आप लोग की क्वेरीज है ना हेल्प कर पाए। वन जी, मैं आपको बता दूं, RS 55 अलग है, RSI अलग है। RSI 55 कुछ नहीं होता, इट इज RS 55 रिलेटिव स्ट्रेंथ
is based on 55 days and RSI is based on 14 days. So I guess that was all for today. Thank you so much everyone for joining this session and मैं hope करता हूँ कि आप